Good. I can see. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Okay. Thank you, sir. Hello. Yes, sir. Introduce yourself to the board members. Sir, I did 10th from DAV Public School, Lakhisrai. I did 12th from Vidya Bhavan Balika Vidyapit, Lakhisrai. I did BTech in Electrical Engineering from NIT Agartala in 2019. And since last 3 years, I am doing job as an engineer in L&T Power. That's good. I can see that you were project leader in your college Yes. and house leader in school. What do you understand by leadership qualities? Sir, setting an example and leading from the front, having dedication and courage to do the thing. Setting an example and Leading from the front, sir, having dedication, courage, patience to do something which will set an example for other. okay, how a leader is different from a manager? Sir, manager, the main purpose of manager is managing the things, means doing something which can help others to manage the thing. And so leader is leading, means he can contribute something significantly which others can follow. Okay, tell me one thing, Alok, that in civil service, whom should you prefer, a manager or a leader? I think, sir, mix of both. Mix of both. Yes, sir. Why? Because the in civil service you have to go as per the rules, regulations. You need not have to lead the team. The leadership aspect is associated with the political masters. You are supposed to carry out the decisions which have been taken at the political level. So I think you should be a very good manager in civil service rather than a leader. Sir, I think I have to work with a team. So I have to motivate other. I have to set an example. I have to means tell people how to do things. And I think these are the qualities of a leader. Okay, right. Tell me, supposing your staff, there are two kinds of staffs under you, working under you, and one group of staffs, they are not actually doing the job the way they should have done. Yes. Another group is performing the job as per your directions. So, how are you going to treat the first group of staffs? सर मैं आई स्पीक इन हिंदी से. ठीक है, हिंदी में बोले. सर मुझे ऐसा लगता है कि सर उनको ट्रीट करने का दो तरीका हो सकता है. पहले तो सर मैं उनसे बात करूंगा कि आप मतलब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं. और दूसरा सर मेरे पास ऑथोरिटी है कि उनको फॉलो करना चाहिए. अगर मेरे ये बोलने के बावजूद एक बार दो बार बोलने के बावजूद भी नहीं करते हैं तो मैं उनको एज ए रिटन भेजूंगा कि आप ये सब चीज़ फॉलो कीजिए. अच्छा, ठीक है. तो अब इसमें बताएं कि जो आप अभी आपने बताया है, इसमें लीडरशिप कहाँ है? ये तो मैनेजर का जॉब है. सर दिस इज़ द जॉब ऑफ मैनेजर सर, लेकिन और भी बहुत सारे चीज़ हैं. वही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, तभी तो मैं बोल रहा था आपको कि सिविल सर्विस में मैनेजर का ज़्यादा ज़रूरत है, लीडर का कोई ज़रूरत नहीं है. सर ऐसा कहना मुझे लगता है सर गलत होगा कि कोई ज़रूरत नहीं है सर. ज़रूरत है सर, क्योंकि और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं सर. जैसे अगर मैं मोटिवेटेड रहता हूँ किसी काम करने के लिए, अगर कुछ मैं बेटर करना चाहता हूँ, कुछ मैं इनोवेटिव करना चाहता हूँ सर, तो मुझे लीड करना पड़ेगा फ्रंट से, ताकि लोग देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ और इट में कि वो भी इसमें मोटिवेटेड हों और एक जो कम्युनिटिव है सर वो एक अच्छा इफोर्ट बने. तो अगर आप लीड करेंगे तो फिर आप में और जो यूनियन का जो लीडर है दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? तो फिर तो ऑफिस में आप यूनियन स्टार्ट कर देंगे, लीडर बन जाएंगे उनके. सर मुझे लगता है हमारा जॉब जो है सर डिफरेंट है विथ रिस्पेक्ट टू लीडर सर. मीन्स मैं विद इन अ रूल रह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर जो है उसको फॉलो करके उस तरह से लीड करूँगा सर. और उनका डिफरेंट लीडिंग का रोल होता है सर. वो पीपल को मोटिवेट करते हैं, पीपल के लिए मीन्स सर उनका डायरेक्ट होता है. हमारा सर वी आर एक्सिक्यूटिव, तो हम सर मीन्स इनडायरेक्ट वे में जो भी स्कीम्स होगा, जो भी प्रोग्राम्स होगा उसको इम्प्लीमेंट करने में से हेल्प करते हैं. ओके, थैंक यू. थैंक यू सर. ठीक है सर.
इतिहास पढ़ा आपने? यस सर। ये बताइए, भारत में कौन से विदेशी यात्री आए थे जिन्होंने भारत के बारे में लिखा और जिसको पढ़ करके हमको भारत के इतिहास के बारे में पता लगता है? सर नाम बोलते जाइए पहले। यस सर। मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, सर अब्दुल रजाक। सर इतना मैं अभी रिकॉल कर पा रहा हूँ। अब्दुल रजाक जी किन के समय आए थे? सर कृष्ण देव राय टूकेस। क्या लिखा उन्होंने भारत के बारे में? सर क्या लिखा सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है सर। हुएनसांग ने क्या लिखा? सर हुएनसांग ने सर हर्षवर्धन के टाइम वो आए थे, उन्होंने उस टाइम उनके बारे में लिखा सर, और उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था उसके बारे में उन्होंने चर्चा हाँ, किया। वो बताइए थोड़ा। सर एग्जैक्ट नहीं पता है सर। अच्छा, वो नालंदा भी आए थे? यस सर, वो नालंदा आए थे। क्या देखा उन्होंने? सर एग्जैक्ट नहीं पता है सर। अच्छा, छोड़िए, सॉरी सर। भारत पे जितने भी आक्रमण हुए हैं, चाहे वो अलेक्जेंडर के समय से या बाद में मुगलों के समय भी, सबके सब नॉर्थ वेस्ट से आए। यस एक पर्टिकुलर रास्ते से आए, है ना? क्या खासियत रही है वहाँ पे? क्यों उसी रास्ते से लोग आए? कोई भी नॉर्थ ईस्ट से, आसाम साइड से या इधर से कोई भी नहीं आया? सर एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है सर, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ। करिए, गेस करिए। सर मुझे लगता है एक तो वो एरिया सर, जैसे नॉर्थ ईस्ट, ये इस साइड वाला जो एरिया था सर, वो जोग्राफिकल उतना सुटेबल नहीं था आक्रमण के लिए। अच्छा। मीन्स हिली एरिया है, टेरेन एरिया है। और ये एरिया सर एक पाथ प्रोवाइड करता था सर, जिससे वो। कौन सा पाथ था वो? नाम नहीं पता है सर मुझे। थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफिक आइडिया नहीं है उस साइड में जहाँ से ये लोग आए? कौन सा रास्ता लिया था इन्होंने? सर एग्जैक्ट मुझे नेम नहीं पता है सर, सॉरी सर। इतिहास का वो पोर्शन आपने नहीं पढ़ा है सर मैंने मन में एक बात आनी चाहिए कि सारे के सारे इधर से ही क्यों आ रहे हैं? यस सर, मैंने पढ़ा है सर, बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, पानीपत की कितनी लड़ाइयाँ हुई थी? सर पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। कौन कौन हुई थी, किस किस साल में, किन के बीच में? सर पहला सर इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में 1526 में हुई थी। दूसरा सर 1556 में हुई थी सर, अकबर के बीच में। और मुझे सर सेकंड नाम नहीं याद आ रहा है। हेमू? नहीं सर, तैमूर नहीं था। तैमूर नहीं, हेमू। सर एग्जैक्ट नहीं याद पता। नहीं। चलिए, यस। तीसरा? और तीसरा सर 1761 में हुई थी, जो कि मराठाज और सर अफगान। सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। ये सब पानीपत में जाके क्यों लड़ते थे? सर इसके कुछ रीजंस हैं। एक तो सर वो प्लेन एरिया था सर, जो कि प्रोवाइड करता था एक बैटल फील्ड ग्राउंड, जिसके कारण वहाँ पे लोग लड़ते थे सर। सब बाकी रीजन सर मुझे अभी नहीं ध्यान। तो मतलब समझिए कि पूरे पंजाब, कश्मीर पार करके दिल्ली के सामने आके पानीपत में, मतलब यहाँ के लोगों को पता नहीं लगता था कि कोई अटैक करने आ रहा है? क्या लग रहा होगा उस समय? सर लोग पहले ही रोकना चाहिए, है ना? यस सर, रोकना चाहिए पहले सर, लेकिन सर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है सर, तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक सर। थैंक यू सर। आलोक, यस सर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपका बैकग्राउंड रहा है। यस L&T पावर में आप वर्क करते हैं। यस सर। ये एक डिफरेंट फील्ड आपने चुना फिर अपने लिए, क्यों? सर मैंने कुछ मेरे क्वालिटीज़ हैं, उस बेसिस पे भी मैंने डिसाइड किया सर। मुझे लगा कि सर मैं एज एन इंजीनियर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो वो एक रीज़न है सर। दूसरा रीज़न सर डाइवर्स जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इधर सर। हमें एक्चुअली सर मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मैंने स्ट्रगल देखा है इनिशियल स्टेज में सर, तो मैं चाहता हूं कि ग्रास रूट लेवल पे वर्क करूं। ये सब कुछ रीजंस हैं सर चूज करने के। ठीक है, तो और इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या बेनिफिट मिलेगा आपको एडमिनिस्ट्रेशन में? सर मुझे लगता है इसका डायरेक्ट बेनिफिट्स भी है और इनडायरेक्ट बेनिफिट्स भी है सर। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट्स में सर ई गवर्नेंस में मैं हेल्प कर सकता हूं सर। ई गवर्नेंस? यस सर। दूसरा सर जैसे बहुत सारे स्कीम्स हैं, सौभाग्य स्कीम, पंडित दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, IPDS स्कीम, तो ये सारे स्कीम को सर मैं जो कि इलेक्ट्रिकल रिलेटेड है सर, तो मैं बेटर समझ पाऊँगा, तो इनको मैं पहुँचाने में हेल्प कर सकता हूँ सर। और इनडायरेक्ट वे में सर 4 साल मुझे सिर्फ सर इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ही नहीं सीखने को मिलता है सर,
और भी बहुत सारे क्वालिटी, जैसे मैं प्रोजेक्ट लीडर था सर, फिर सर बहुत सारे डिफरेंट लोगों के साथ, डिफरेंट कल्चर के साथ रहना सर, तो ये सारे भी चीज़ सीखने को मिलते हैं सर, तो वो उसका भी कहीं ना कहीं यूज हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा। अच्छा, करंट क्या है? क्या सर? करंट क्या है? करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सर। चार्ज किस रेट से फ्लो करता है सर, वो करंट है। कौन कौन से कंडीशंस चाहिए चार्ज को फ्लो करने के लिए? सर देयर शुड बी अ पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल क्या एंड है? मटेरियल शुड बी कंडक्टर। पोटेंशियल क्या है? सर पोटेंशियल ये है कि दोनों के बीच में सर डिफरेंस क्या है, मीन्स सर एग्जैक्ट तो सर मैं डिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ। वो तो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, दैट इज द Yes, डिफरेंस ऑफ द हाई पॉइंट एंड अगर किसी चार्ज को सर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो फोर्स लगता है सर, वो पोटेंशियल है। अच्छा, दैट इज पोटेंशियल। यस। ठीक। बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी Yes. मैटर्स कितने तरह के हो सकते हैं? सर 3 तरह के हो सकते हैं सर। एक कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। थोड़ा थोड़ा बता दीजिए सबके बारे में। सर इसको डिफाइन करने का 2 तरीका हो सकता है सर। एक बैंड एनर्जी गैप पे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, बैंड एनर्जी बेसिस पे, और दूसरा रेसिस्टेंस बेसिस पे सर। ओके। अगर रेसिस्टेंस कम होता है सर और जिसमें करंट इजीली फ्लो कर सकते हैं सर, तो वो कंडक्टर है सर। जिसमें रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है उसमें करंट फ्लो नहीं कर सकता है सर, तो वो इंसुलेटर है। ओके। लेकिन सर जिसमें बैंड मीन्स सर इंसुलेटर रेसिस्टेंस सर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का हो सर, तो वो सेमी कंडक्टर है सर। और बैंड एनर्जी बैंड के बेसिस पे सर अगर बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों ओवरलैप करता है सर, तो वो कंडक्टर है। ओके। अगर दोनों के बीच का पोटेंशियल जो डिफरेंस है, एनर्जी गैप जो है, वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सर, तो वो सेमी कंडक्टर है। ओके। और मोर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है सर, तो वो इंसुलेटर है। ओके, ठीक है। फिर सेमीकंडक्टर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्यों करते हैं? सर क्योंकि सेमीकंडक्टर सर जनरेशन में यूज नहीं होता सर। कंडक्टर का यूज हम लोग जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सारे में करते हैं सर। हाँ। और सेमीकंडक्टर का मेन फंक्शन जो है सर, वो करंट को कंट्रोल करने, वोल्टेज को कंट्रोल करने, रेगुलेट करने में यूज होता है सर। तो इसलिए उसका सेमीकंडक्टर में ज़्यादा यूज होता है सर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इसलिए ज़्यादा यूज़ यूज करते होता है हैं। सर। ठीक है। आईसी सर्किट्स क्या होते हैं? सर आईसी सर्किट सर सेमीकंडक्टर से कंसिस्ट एक सर्किट है सर, जिसमें हम सर उसका डिफरेंट टर्मिनल्स को यूज करके एग्जैक्ट सर मुझे अभी ध्यान में नहीं है। आईसी का मतलब क्या है? आईसी सर्किट में इंटीग्रेटेड सर्किट सर। ठीक। आलोक, Yes. ठीक है, आपका इंटरव्यू अच्छा है। यस, थैंक यू सर।